Hi guys, welcome to Super Coaching Regulatory Bodies by Textbook. So economic and social issues component is a very important part of the RBI Grade B examination and you might be fearful with respect to this component as well. So that is why in this video I am going to tell you about the economic and social issues, how to study the economic and social issues, what is the basically parameters that you should consider, whether you should read the current affairs, whether you focus on the descriptive answer writing or not, right? So these all areas we would be covering in this particular session. So let's start without wasting much time, guys. So this is the agenda that we are going to cover here, that is pattern and importance of ESI paper, then marks breakup of ESI, we would be covering about the syllabus, we would be covering about the current affairs integration in the ESI preparation, and last but not the least, descriptive writing preparation for the ESI component. So number first is, guys, pattern and importance. So importance is, you can imagine the importance when a separate dedicated paper of 100 marks is assigned for the phase 2. So this itself very important for the entire examination process. If I tell you about the pattern, guys, so economic and social issues, you can see this is divided into two parts, that is objective and descriptive. Equal weightage is assigned 50% to objective and descriptive. Marks bhi equal hai yahan pe 50 and 50. If I tell you about the time allocated, so 30 minutes is allocated for the objective part and 90 minutes are allocated for the descriptive part. Number of questions would be 30 in the objective part, so 20 questions would be of 2 marks, right, and 10 questions would be of 1 mark, so that makes the total of 50. So 30 minutes would be assigned in which you have to attempt 30 questions, right? And if I tell you about the descriptive part, so descriptive means 6 questions would be there, 3 of 15 marks and 3 of 10 marks, but out of that you just have to attempt 4 questions, 2 of 15 marks and 2 of 10 marks, right? So this makes the total of 50 and the total would make the total of 100 marks. अब यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान देने वाली है, if I tell you about the importance of this paper, so this paper is not only important for clearing the examination, वो तो अपने आप में एक पार्ट है ही कि 100 marks का पेपर है, you have to clear that paper in order to become RBI Grade B officer. But if I tell you about the importance of this paper after you get into the RBI, guys, वहां पर आपके लिए बहुत काम आने वाला, because the basic concepts that you would be covering as a part of economic and social issues, that would be helping you throughout your career journey. वहां पे आपकी बहुत हेल्प करने वाला है ये थ्रू आउट योर करियर जर्नी, ठीक है? तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, फेज 1 में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फेज 2 में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यू में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर मैं आपसे बोलूं कि रेपो रेट कितना है, यू माइट बी एबल टू टेल दैट, ठीक है, आप मुझे बता देंगे, बट इफ आई आस्क यू कि व्हाई आरबीआई इंक्रीजेस और डिक्रीजेस रेपो रेट, ठीक है, क्या आरबीआई अचीव करना चाहता है उससे, सो वहां पे आप स्टक हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स दिस पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको ना सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए पढ़ना है, यू हैव टू रीड दिस कंपोनेंट टू गेन द नॉलेज, बिकॉज अल्टीमेटली व्हेन यू वुड गेट इनटू आरबीआई एज अ आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, इस पेपर के थ्रू आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है कि आप अपना काम बहुत अच्छे तरीके से इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट मैनर में कर सके. सेकंड इज, आई टेल यू अबाउट द मार्क्स ब्रेकअप ऑफ दिस पेपर. सो मार्क्स ब्रेकअप की बात करें यहाँ पे, सो इट इज ऑफ 100 मार्क्स, आई टोल्ड यू, बट स्टैटिक और करंट के यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्टैटिक पोर्शन इज समवेयर अराउंड 30 to 35 मार्क्स. दिस इज नोवेयर गिवन इन द नोटिफिकेशन, दिस इज जस्ट बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, ठीक है? सो 30 and 35 मार्क्स आर 30 to 35 मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर द स्टैटिक पार्ट, एंड करंट पार्ट की बात करें तो 65 to 70 marks are allocated for the current part, but again this may change, but overall एक rough idea के लिए you can कीप इन माइंड कि दिस कैन बी द ब्रेकअप बिटवीन द स्टैटिक एंड द करंट. अब यहां पे जो एक एनालॉजी आती है वो ये आती है कि क्या सर हम स्टैटिक पार्ट छोड़ दें, अगर स्टैटिक का वेटेज काफी कम है तो क्या हम इसे छोड़ दें? द आंसर इज नो एंड नॉट एट ऑल, गाइज. व्हाई आई टोल्ड यू व्हाई दिस पेपर इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज यू माइट बी एबल टू रीड द करंट अफेयर्स, दिस इज द रेपो रेट, दिस इज द करंट रेपो रेट, सॉरी दिस इज द करंट रेपो रेट, दिस इज द सीआरआर, दिस इज द एसएलआर, यू माइट नो ऑल द रेट्स, ठीक है, वो सारी चीजें, राइट, ठीक है, बट यहां पे एक जो इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको ये समझना जरूरी है कि why these quantitative tools are basically used for the RBI and how these quantitative tools are used by the RBI to achieve the ultimate objectives of the monetary policy. वो understanding develop करने के लिए you have to read the static part, you have to cover the static part, and also ऑब्जेक्टिव में भले ही वेटेज थोड़ा कम हो, डिस्क्रिप्टिव में इसका काफी वेटेज है, तो वहां पे बहुत हेल्प करेगा, इंटरव्यू में आपको बहुत हेल्प करेगा, एंड एज आई टोल्ड यू दैट व्हेन यू वुड गेट इनटू आरबीआई एज आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर, वहां तो हेल्प करने वाला ही है आपकी. तो कहने का मतलब है स्टैटिक वेटेज में मार्क्स वाइज भले थोड़ा सा कम लग रहा हो, बट आप
करंट आपको नहीं समझ में आएगा until and unless you have completed the static part. So static is the most important thing, क्योंकि करंट का आप आंसर इंटरव्यू में या उसके बाद आप कर पाए या ना कर पाए, अगर आप स्टैटिक का आंसर नहीं कर पाएंगे सो वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाने वाला है, ठीक है। सो गाइस, दिस इज द मार्क्स ब्रेकअप दैट इज देयर इन द ईएसआई कंपोनेंट। देन बात करते हैं सिलेबस का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सिलेबस एंड दिस विल टेल यू हाउ टू कवर द ईएसआई एंड ऑल्सो द प्रीवियस ईयर पेपर। सो सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर पेपर, दीज टू आर द सच सोर्सेज दैट यू हैव टू कीप देम always on your study table and you have to refer it on a regular basis, ठीक है। क्योंकि सिलेबस आपको ये बताएगा कि क्या पढ़ना है एंड PYQ आपको बताएगा कि कितना पढ़ना है, ठीक है। दोनों ही चीजें आपस में साइमल्टेनियसली पैरेलली चलती हैं। सिलेबस विल टेल यू व्हाट टू रीड एंड प्रीवियस ईयर पेपर विल टेल यू हाउ मच टू रीड, राइट। सो यहां पे अगर हम बात करें सिलेबस की गाइस, तो यहां पे यू कैन सी ESI में 4 कैटेगरीज आर देयर, 4 heads are there: growth and development, Indian economy, globalization and social structure in India. So right now at this point of time, what is the strategy that you have to follow for the ESI component without focusing on the important and the less important topics? You have to cover each and every topic. Reason कि यहाँ पे अगर syllabus में कोई चीज दी है, there is a very high probability that that can be asked in the examination and at that point of time you cannot claim कि सर ये टॉपिक पहले कभी नहीं पूछा गया, अब क्यों पूछा जा रहा है। If it is mentioned in the syllabus, you have to cover that. Number first. Number second is basically guys, यहाँ पे you have sufficient time at this point of time, so it is your duty to complete all the topics mentioned in the syllabus, ठीक है। तो अभी right now you have to cover all the topics given here. If I tell you about the growth and development, तो यहाँ पे measurement of growth is there, poverty alleviation and employment generation. This topic is very much important from objective as well as descriptive point of view. Sustainable development is important for the purpose of objective part. इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मोर। देन यहाँ पे अगर हम फर्दर बात करें, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, आपके एग्जाम के लिए भी। फर्दर यू कैन सी द इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट, सो वो आप लेटेस्ट ही रिकमेंड करेंगे जब भी यहाँ पर आएगा, रेफर करेंगे उसको, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे बैंक से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एज वेल। देन पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक है, दैट वुड बी द पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी इटसेल्फ, ठीक है। पॉलिटिकल इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर एंड सर्विसेज सेक्टर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कंपैरेटिवली कम आए हैं, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि आपको ये टॉपिक अभी छोड़ देने हैं, आपको सारे टॉपिक्स करने हैं। रीजन बीइंग यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहां पे गाइस आपको काफी हेल्प मिल जाएगी चीजों को समझने में, और इफ टॉपिक इज मेंशन्ड इन द सिलेबस दैट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन टू। देन फर्दर यहां पे बात करें ग्लोबलाइजेशन की, तो ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF एंड वर्ल्ड बैंक, तो ये जो सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से दिए हुए, राइट। तो यहां पे जो पेपर होता है वो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछा जाता है। बट द थिंग इसकी टॉपिक्स में कितना डीप जाना है आपको, हाउ यू विल गेट टू नो, आपको पता चलेगा व्हेन यू वुड बी रेफरिंग द प्रीवियस ईयर पेपर। वन मोर कंपोनेंट इज देयर, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, एंड दिस टॉपिक, दिस हेड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया इज मोस्टली इंपॉर्टेंट फॉर द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, ठीक है। इस तरीके से आपको पढ़ते हुए चलना है। नाउ व्हाट सोर्सेज वुड यू रेफर, ठीक है। सोर्सेज आप कौन से रेफर करेंगे, तो यहां पे आप सोर्सेज रेफर कर सकते हैं अपना रमेश सिंह आप यूज कर लीजिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। इकोनॉमिक्स के लिए आप यहाँ पे रमेश सिंह यूज कर लीजिए, बट यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, आपको लेटेस्ट एडिशन ही रेफर करना है एंड ऑल्सो पूरी बुक पढ़ने मत बैठिएगा। रीजन बीइंग कि वो बुक जो है वो सिर्फ RBI के हिसाब से नहीं बनाई गई, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्स को कैटर करती है, स्पेशली UPSC सिविल सर्विसेज को कैटर करती है। सो फिर सारी बुक आप पढ़ने बैठ जाएंगे तो दैट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो यू आर सपोज टू कवर द बुक टॉपिक वाइज, जो भी टॉपिक यहाँ पर है, और साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी यहाँ पे करते चलना है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रीवियस ईयर पेपर का, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्ट्रेटेजी रखनी है, व्हेन यू कंप्लीट वन टॉपिक, सो व्हाट इज योर ड्यूटी, योर ड्यूटी इज टू cover that particular topic. Then after that you would be giving the mock, objective mock, you would be giving descriptive mock, and you would be referring the previous year paper. Then only I would consider कि आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। होता क्या है कि हम पढ़ लेते हैं, हमें लगता है प्रीवियस ईयर पेपर में बाद में करूंगा when I complete the entire syllabus। लेकिन अगर आपने टॉपिक नंबर 1 से ही PYQ रेफर करना चालू कर दिए, सो अगर आप कुछ गलत पढ़ रहे होंगे, जिस लेवल पर रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस लेवल तक नहीं पहुंच रहे होंगे, सो सेकंड टॉपिक में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ट्रैक पर आ सकते हैं। बट इमेजिन if you have already spent two or 2.5 months in the completion of entire component, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ रहे हैं, फिर आपको लगे कि यार मैंने उस लेवल पर तो प्रिपरेशन ही नहीं की है, then again you have to devote that much time। सो इसीलिए स्ट्रैटेजी वुड बी फर्स्ट कंप्लीट वन टॉपिक,
एक टॉपिक आप कंप्लीट करेंगे, यू वुड रेफर द ऑब्जेक्टिव मॉक, डिस्क्रिप्टिव मॉक, ठीक है, एंड देन प्रीवियस ईयर पेपर, देन आई वुड कंसीडर कि आपका वो टॉपिक हो गया। इससे क्या होगा, आपको पता चलता रहेगा आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एग्जाम के रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दिस स्ट्रेटजी यू हैव टू रेफर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ESI। देन यहाँ पे बात करें फोकस एरियाज पे गाइस, तो फोकस एरियाज में देखिए सबसे पहले जो टॉपिक दैट आई एम मेंशनिंग हियर, सो वो टॉपिक्स आपके रेफरेंस के लिए हैं, आपको अभी इन पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। अभी आपकी ड्यूटी है कि पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है, सबसे पहला काम। पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स यहां पे आते हैं ESI करंट अफेयर्स, रिपोर्ट्स हो गया, स्कीम्स हो गया, ठीक है। ये तीन करंट अफेयर्स यहां पे आते हैं, तीन एरियाज आते हैं करंट अफेयर्स के, एंड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो करंट अफेयर्स आपको पढ़ते चलना है, कैसे इंटीग्रेट करना है आई विल टेल यू अभी थोड़े टाइम में, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। बट मीनवाइल दिस इज द करंट अफेयर, ये आपका फोकस एरिया रहने वाला है करंट अफेयर्स के हेड में, ठीक है। देन बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फोकस टॉपिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव पार्ट। सो यहां पे ये ऑब्जेक्टिव पार्ट है, कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं गाइस विच यू हैव टू कवर। लेकिन ये टॉपिक्स जो आप सिर्फ फेमस सोचे कि लिमिटेड टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, आपको पढ़ना आपको सब कुछ है, बट दीज आर द टॉपिक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। If I tell you about the objective topic, so measurement of growth, economic history of India, poverty alleviation and employment generation, monetary policy, fiscal policy, balance of payment and Indian international economic institutions. So these are some major important topics from the objective point of view, जो कि बहुत important हैं। डिस्क्रिप्टिव की बात करें गाइस, तो यहां पे यू कैन सी मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इंडियन एग्रीकल्चर, डेमोग्राफिक ट्रेंड्स, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, देन सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक सर्वे एंड यूनियन बजट। सो दीज आर द टॉपिक्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहां पे अगेन आई वुड गिव द डिस्क्लेमर कि यहाँ पे ये टॉपिक्स पे फोकस सिर्फ आपको अभी नहीं करना, ठीक है। यू हैव टू कंप्लीट ऑल द टॉपिक्स दैट इज मेंशन्ड इन द सिलेबस। बाद में एक बार आप खत्म कर लेंगे, जब आपका एग्जाम अप्रोच करेगा, देन ओनली यू कैन रेफर दीज इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे सर करंट अफेयर्स कैसे पढ़ना है और करंट अफेयर्स को कैसे इंटीग्रेट करना है। लुक, इफ यू आर समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, राइट, सो व्हाट स्ट्रेटजी यू मस्ट हैव बेसिकली। यहाँ की करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक नोटबुक लेनी है, ठीक है। नोटबुक में व्हाट यू विल मेंशन द टॉपिक, यू विल मेंशन द टॉपिक इन द सिलेबस, ठीक है। जो भी सिलेबस में टॉपिक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका यू कैन से पॉवर्टी, देन यहां पे हो गया एम्प्लॉयमेंट, राइट। सो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अलग अलग पेजेस में एक एक टॉपिक मेंशन कर लेंगे। यू विल टेक अ नोटबुक, एक पेज में आप लिखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी, एक पेज में आप लिखेंगे एम्प्लॉयमेंट, एक पेज में आप लिखेंगे पॉवर्टी। इस तरीके से सारे टॉपिक्स को आपको एक एक पेज में लिख लेना, ठीक है। देन यू विल स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आप करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करेंगे, राइट। सो आपको करना कैसे है, यहां पर आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, सपोज इफ यू आर रीडिंग एनी करंट अफेयर्स, ठीक है, आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कोई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो कि यहाँ पे एक रिलायबल सोर्स से आई है, आप उसको वहां पे नोट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है इफ यू आर कवरिंग एनी रिपोर्ट रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट, राइट, सो व्हाट यू वुड डू, यू वुड ओपन दिस पेज एम्प्लॉयमेंट वाला, वहां पे आप सिंपल उस पेज में बेसिकली आप छोटा सा वो करंट अफेयर्स आप छोटा सा मेंशन कर देंगे। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है कि इसको हम प्रिपेयर करें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिपोर्ट, ठीक है, फॉर एग्जांपल देयर इज अ रिपोर्ट, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट। सो हाउ यू वुड यू राइट इन योर कॉपी इटसेल्फ, तो यू वुड राइट इंडिया स्किल्स रिपोर्ट, ठीक है, इंडिया स्किल्स रिपोर्ट ऐसे आपने कर दिया 2023, इसकी रिलीजिंग एजेंसी भी लिख लीजिएगा, ठीक है। 52% ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से यहां पर लिख लेना है बस ऐसे। तो आपको यहां पे बहुत बड़ा आपको पूरा पैराग्राफ नहीं लिखना है, यू आर सपोज टू राइट दैट पर्टिकुलर करंट अफेयर्स इन अ सिंगल लाइन इटसेल्फ, इन अ सिंगल सेंटेंस इटसेल्फ, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको वहां पे नहीं लिखना है, क्योंकि आपको ऐसे बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि जो लोग बोलते हैं सर करंट अफेयर्स को फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के साथ इंटीग्रेट कैसे करें, वो आप इस तरीके से कर सकते हैं जब आपने पहले से ऐसे छोटे छोटे नोट्स बनाए हैं। सो बिफोर द एग्जामिनेशन यू वुड बी हैविंग दिस करंट अफेयर्स नोट्स ऑफ अराउंड 20 to 25 पेजेस, जो आपके एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव आंसर में बहुत काम आने वाले हैं। एंड अगर आपने ये प्रैक्टिस कर ली, एंड इफ यू आर एबल टू इनकॉर्पोरेट द current affairs in the descriptive part, you would be able to
गेट मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स असाइन फॉर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी कि बहुत अच्छा आप वहां पे करने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिस आपको करते रहने, इसको साथ साथ में रिवाइज भी करते रहना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 10 डेज 15 डेज में आपने जो भी ऐड किया है उसको आप बार बार रिवाइज करते रहिए ताकि वो चीजें आपको याद होती रहे। ठीक है, एंड ऑल्सो इफ आई टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स गाइड, तो करंट अफेयर्स का वेटेज आपको पता ही है, इसमें 65 to 70% का वेटेज करंट अफेयर्स का है, तो वो तो आपको पढ़ना है। लेकिन वेन एवर यू आर कवरिंग द करंट अफेयर्स, एक चीज ध्यान में रखनी है आपको कि वो करंट अफेयर्स सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, यू हैव टू कवर द करंट अफेयर्स फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। तो दोनों ही माइंडसेट से एक चीज ध्यान रखिएगा, व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग द करंट अफेयर्स यू शुड हैव अ माइंडसेट दैट आई एम प्रिपेयरिंग द करंट अफेयर्स फॉर फेज 1, फॉर फेज 2 ऑब्जेक्टिव, फॉर फेज 2 डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज फॉर फेज 3। तो करंट अफेयर्स पढ़ना एक ही बार है, लेकिन आपको उसकी इंटीग्रेटेड अप्रोच रखनी है विद रिस्पेक्ट टू फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, ताकि आप एक ही बार पढ़ें, उसको आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज कर सके अपने टाइम को। क्लियर, इस तरीके से आपको करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करना है अपनी प्रिपरेशन में ईएसआई का। देन बात करें यहां पर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहां पे अगर मैं बात करूं पूरे ही डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कंपोनेंट की, सो दैट इज अ 67% वेटेज जो है बेसिकली किसका है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का है। 50 मार्क्स का एफएम डिस्क्रिप्टिव, 50 मार्क्स का ईएसआई डिस्क्रिप्टिव एंड 100 मार्क्स का इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव। सो दैट मेक्स द टोटल ऑफ 67%। तो अगर आप 67% पे आपकी कमांड नहीं है, ठीक है, देन यू वुड नॉट बी एबल टू मेक इट। बहुत ही क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे आपको डे 1 से ही आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। ट्राई टू राइट 2 आंसर्स, एंड इफ आई टेल यू अबाउट द ईएसआई, तो ईएसआई में आपको 2 आंसर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस यू हैव टू राइट, 2 आंसर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस विदाउट एनी गैप। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको गैप नहीं करना है, आपको रेगुलरली लिखना है। अगर 2 नहीं हो पा रहा तो इनिशियली यू कैन स्टार्ट विथ 1 आंसर एंड लेटर ऑन यू कैन ऐड 1 मोर। ठीक है, बट स्टार्ट करिए गाइस। इफ यू आर थिंकिंग कि लेट मी कंप्लीट द सिलेबस, आई विल डू द आंसर राइटिंग, आई हैव बीन डूइंग द आंसर राइटिंग फ्रॉम सिंस माय स्कूल, सिंस माय कॉलेजेस गाइस, वहां पे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं था, वहां पे यू आर हैविंग एब्सोल्यूट कट ऑफ जो आपको क्लियर करना था, बट यहां पे आपको अपने जो आपके साथ वाला कॉम्पिटिटर उससे बेहतर करना है, देन ओनली यू विल गेट इनटू द आरबीआई, राइट। सो यहां पे आपको प्रैक्टिस उस हिसाब से करनी होगी, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट पे यू हैव टू प्रैक्टिस, एंड बिलीव मी दिस इज अ प्रोसेस, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग इज अ प्रोसेस, जहां पे आपको क्या करना है, आपको यहां पे एटलीस्ट आपको 90 डेज यहां पे लगातार प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ताकि 90 डेज के बाद अगर आपने लगातार 90 डेज यहां पे प्रैक्टिस कर लिया, उसके बाद आपके पास इतना कॉन्फिडेंस होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दी जाए, आप उसमें कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आंसर लिख लेंगे, राइट। बट उसके लिए यू नीड टू प्रैक्टिस, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच यू विल क्रैम, राइट, दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू विल इवॉल्व ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो इस प्रोसेस में आपको जाना पड़ेगा। आप जब भी स्टार्ट करेंगे तब भी आपको टाइम इतना लगेगा, तो अब आप सोचिए अगर आप फेज 1 के बाद प्लान कर रहे हैं इतना टाइम तो आपको मिलेगा भी नहीं, फिर वहां पे एक पैनिक क्रिएट हो जाएगा। सो राइट नाउ दिस इज अ सुटेबल टाइम, दिस इज अ परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। एक आंसर लिखिए, दैट विल हार्डली टेक 15 to 20 मिनट्स। इनिशियली यू विल फेस द प्रॉब्लम्स, दैट्स नॉट एन इशू, प्रॉब्लम स्टार्टिंग में फेस करेंगे, धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल बी एबल टू राइट द आंसर। बट स्टार्ट करिए गाइस, वेट मत करिए कि फेज 1 के पहले कर लूंगा, फेज 1 हो जाए फिर कर लेंगे, सब बहाने हैं, बिल्कुल नहीं हो पाता। और एग्जाम में इसका जो रिजल्ट आता है वो ये होता है कि आप डिस्क्रिप्टिव बहुत गंदा परफॉर्म करते हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्लियर, तो यहां पे आपको इस तरीके से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग पर फोकस करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंट्रोडक्शन हो गया, बॉडी, कंक्लूजन, देन फर्दर करंट अफेयर्स इंटीग्रेशन आपको रखना है, देन फर्दर आपको यहां पे डेटा रिपोर्ट्स वगैरह यूज करनी है। ठीक है, डेटा रिपोर्ट्स, कुछ स्कीम्स हो गई करंट, ठीक है, स्कीम्स वगैरह हो गई कुछ, ये आपको इंटीग्रेट करनी रहेंगी। देन फर्दर यू हैव टू मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल, जहां पे आपको अलग अलग डायमेंशन यूज करने, फॉर एग्जांपल सोशल, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, लीगल, इन्वायरमेंटल, इस तरीके से। ठीक है, तो वो आपको अलग अलग डायमेंशंस यू नीड टू ऐड। लेकिन अगर आप सोचेंगे मैं डे 1 पे एकदम परफेक्ट आंसर लिखूं, तो फिर वो आपके लिए फिर वो पॉसिबल नहीं। ठीक है, डे 1 पे आप कभी कोई चीज परफेक्ट कर ही नहीं सकते। आप करिए, पहले आप आंसर लिखने में चैलेंजेस आएंगे, फिर आप बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, फिर जब आप एक बार वर्ड लिमिट मीट करेंगे उसके बाद फिर आपका फोकस इसमें जाएगा, मैं प्रॉपर तरीके से इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन लिखूं, देन करंट अफेयर्स यूज करूं, देन यहाँ पे अपने आंसर को मल्टी डायमेंशनल बनाऊं। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज अ प्रोसेस इन विच यू विल टेक अराउंड 75 to 90 डेज, उतना टाइम लगेगा। तो अगर अभी कर देंगे तो टाइम से आपका प्रिपेयर हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो बाद में टाइम मिलेगा भी नहीं आपको। ठीक है, सो दिस इज ऑल गाइस विद रिस्पेक्ट टू द ईएसआई पार्ट। तो इस तरीके से आपको ईएसआई को अप्रोच करना है, करंट अफेयर्स को, स्टैटिक को, आंसर राइटिंग को। ठीक है, इस तरीके से आप उसको रेफर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर एंड द सिलेबस आर द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर कंपोनेंट। एंड गाइस, इफ यू आर समवन हु इज लुकिंग फॉर
mentorship program for the RBI grade B 2025 examination guys. So here is the mentorship program guys. यहाँ पे हमने launch किया भी आपके लिए लक्ष्य 2.0. This is a comprehensive and the foundation course for RBI grade B 2025 examination, and we are not saying that we would complete your syllabus in 30-40 days. That is not possible guys. This is a comprehensive course in which you will get too many live classes. For example, here you can see 550 plus live classes you will get. 550 plus live classes you will get, and guys, the focus of the live class is ऑन अ कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, यहाँ पे हमारा फोकस है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, फाउंडेशन बिल्डिंग पे, नॉलेज एनरिचमेंट पे, एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन. सिलेबस वुड बी कंप्लीटेड, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना नहीं है. अवर फोकस इज टू डेवलप द अंडरस्टैंडिंग. रीजन बीइंग यू माइट बी फ्रॉम द नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, यू माइट बी फ्रॉम द नॉन इकोनॉमिक्स, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड. ठीक है, तो इट इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको एक ग्राउंड लेवल फील्ड पर, एक लेवल प्लेइंग फील्ड पर आपको लेकर आया जाए, ताकि आप दूसरे कॉम्पिटिटर के साथ compete कर सकें, एंड देन आपको फिर एडवांस लेवल पर ले जाया जाए. एंड दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग दिस मच लाइव क्लासेस. यू कैन सी इतनी सारी लाइव क्लासेस जहां पर हम एक एक एस्पेक्ट को बहुत डीप में जाकर कवर करेंगे, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ आपको चीजें याद कराना नहीं है, हमारा फोकस है आपको चीजें समझाना, ताकि वो नॉलेज दैट यू वुड बी गेनिंग ओवर द टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट यू कैन से 5-6 मंथ, वो आपके साथ जिंदगी भर रहे और जिंदगी भर आपकी हेल्प करती रहे. ठीक है, 220 plus mock test you would get. Then you would get one-to-one mentorship whenever you feel lost in the preparation. Whenever you want to connect with any mentor, you can just book a slot and you can connect with that mentor. Descriptive answer writing में जहां पर we will not only guide you कि कैसे आंसर लिखना है, we will provide you detailed evaluation based on your strength and weaknesses. जो भी आपकी strength और weaknesses हैं, उसके हिसाब से we would provide the evaluation here. Then interview guidance program would be there, जहां पर ना सिर्फ मल्टीपल मॉक इंटरव्यूज वुड बी देयर, उसके अलावा गाइज वी वुड गाइड यू कि बेस्ड ऑन योर प्रोफाइल, बेस्ड ऑन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन द इंटरव्यू, उसमें भी हम आपकी हेल्प करेंगे. डेफ कैसे भरना है, उसमें भी हम आपकी हेल्प यहाँ पे करेंगे. ठीक है, देन टॉप क्वालिटी ऑफ नोट्स यू विल गेट एज अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स, एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स. ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग दिस देन यू आर नॉट सपोज टू हैव एनीथिंग एल्स, यू जस्ट नीड टू focus on the deliverables that we are providing as a part of this particular course. So guys, the link of the course is given in the description. Classes have just started. तो अभी यहाँ पे classes start हुई हैं phase 2 की guys. तो अभी जस्ट हमने स्टार्ट किया है, बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं, 2-3 क्लासेस ही हुई होंगी यहाँ पर. तो अभी वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म मिल जाएंगे, बट देयर आर एन नंबर ऑफ क्लासेस दैट आर अबाउट टू कम. उनको आप बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करिए लाइव फॉर्मेट में. ठीक है, एंड यहाँ पे दिस इज माई टेलीग्राम ग्रुप, इसको जरूर ज्वाइन करिएगा, जिसको ज्वाइन करके यू विल get the regular updates regarding the examination important notification जो भी हैं आपके YouTube सेशन से रिलेटेड, जो भी आपको नॉलेज है, जो भी आपके यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाले उससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे गाइस. प्राइस की बात करें, हम ऑलरेडी बहुत डिस्काउंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं. रीजन बीइंग वी वांट कि दोज हु आर सीरियसली लुकिंग फॉर, दोज हु सीरियसली वांट टू बिकम द ऑफिसर गाइस, तो उनके लिए कॉस्ट एक बैरियर नहीं बनना चाहिए. दैट इज व्हाई वी आर प्रोवाइडिंग डिस्काउंट्स, बट ओवर दैट डिस्काउंट्स गाइस वी आर प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ कूपन कोड. इसको अप्लाई करके आप एकदम ड्रास्टिक डिस्काउंट ले सकते हैं, दैट विल मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू. सो वी आर ट्राइंग एवरी पॉसिबल वे टू मेक द कोर्स मोर अफोर्डेबल फॉर यू. तो यहाँ पे गाइस आप, मेरा नाम है प्रकाश एंड दैट विल वर्क एज अ कूपन कोड. सो इफ यू अप्लाई प्रकाश एज अ कूपन कोड, you will see a drastic discount on the final prices. So after clicking on the link, you will reach to the page of Lux 2.0. वहां पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, there you can see the final price, और वहां पे आपके पास एक अप्लाई कूपन का भी ऑप्शन आ रहा होगा. तो वहां पे कूपन अप्लाई करिए प्रकाश, एंड दैट आफ्टर दैट you can see a drastic discount on the final prices. Clear? So this is all with respect to today's video guys. We'll meet in another video. Till then, goodbye and happy learning guys, and I hope you enjoyed the discussion. So preparation start kariye. If you face any difficulty, just let us know. We will guide you how to take further your preparation. Thank you very much.